Hello everyone, welcome back once again in computer science class. In today's session, I'm going to discuss a new topic that is switch statement. In the previous video session, we had talked about nested if statement. If you didn't see that video, please go through it and watch it. ठीक है, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे switch statement की. ठीक है, it is also a part of control structure in Java. It is a last control structure of if statement, that is switch statement. ठीक है, switch statement. First we need to understand that what is the purpose of switch statement. Sometimes it is also known as switch case statement. That is also correct. आप इसको switch statement भी लिख सकते हैं और you can write switch case. ठीक है, क्योंकि switch के साथ कई सारे cases होते हैं, कई सारी conditions होती हैं, so we can write switch case statement. So both are correct. Don't get confused. Okay. So switch statement, the purpose of switch statement, as you know very well, we were using if else statement, if else ladder. So in that cases we have seen that multiple conditions were there was multiple conditions, and for if else statement there are multiple condition, multiple output, but at a time only one output will be reflected. ठीक है, जब number of conditions increase हो जाती हैं बेटा, सो क्या हो जाता है, प्रोग्राम का जो लॉजिक होता है, जो प्रोग्राम का कोड होता है, वो क्या होता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है. इफ द नंबर ऑफ, आप यहां पर देख सकते हैं, इफ द नंबर ऑफ कंडीशन इज इंक्रीजेस. ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस आ गई, नंबर ऑफ कंडीशंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई. तो कोड की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है कोड क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स हो जाता है. थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मीन्स होता है टिपिकल टू रीड, डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्टी टू रीड, not only for the user but also for the coder, those who have designed this code. So complexity क्या हो जाती है, difficulty to read और difficulty to understand. ये भी complexity है. complexity मतलब होता है पेचीदा हो जाना, समझना, ठीक, समझ में कम आना और आसानी से समझ में ना आना. तो ये होता है complexity. complexity क्यों इंक्रीज हो जाती है, बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ कंडीशंस बढ़ गई, बहुत ज्यादा कंडीशंस है, एन नंबर ऑफ कंडीशंस है, और आप उसको इफ एल्स लैडर के थ्रू आप इसको सॉल्व कर रहे हैं. सो क्या हो जाता है, प्रोग्राम आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, नॉट इजी टू अंडरस्टैंड, नॉट इजी टू रीड द कोड. सो दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम can be overcome with the help of switch case statement. If the number of conditions is very much, in large number of condition is there, so please prefer switch case statement in place of if else ladder. First point, if else ladder and switch case statement both are very much similar. You can say switch case is used for multiple conditions, large series of conditions. आप यहां पर लिख सकते हैं large series of condition. अगर बहुत सारी conditions हैं, then you will use switch केस स्टेटमेंट. ठीक, या आप सिंपली राइट कर सकते हैं स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, फाइन. इफ द नंबर ऑफ कंडीशंस आर लेस, ठीक है, लाइक 4 and 5 conditions are there, 6 conditions, 7 condition, that is okay, fine, till up to 10 condition it is okay, fine, we can use if else ladder. But above 10 conditions, number of conditions are there, 20 conditions, 30 conditions, 40 conditions. So जब आप 40 कंडीशंस राइट करेंगे तो प्रोग्राम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं होगी, डेफिनेटली होगी. तो उस केस में आप स्विच केस स्टेटमेंट का यूज करेंगे और उसके थ्रू आपको प्रोग्राम को समझने और उसको रीड करने में आसानी होगी. ठीक है, उसकी कोड की रीयूजेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी. ठीक है, सो लार्ज सीरीज ऑफ कंडीशन अगर आती है, नंबर ऑफ कंडीशंस है, बहुत एन नंबर ऑफ कंडीशंस है, तो वी विल प्रेफर स्विच केस स्टेटमेंट और स्विच स्टेटमेंट. ठीक है, बोथ आर सेम. इफ नंबर ऑफ कंडीशन इज लिमिटेड, नंबर ऑफ कंडीशन इज लेस, इफ नंबर ऑफ कंडीशंस आर लेस, अगर नंबर ऑफ कंडीशंस क्या है, लेस है, देन वी विल प्रेफर इफ एल्स लैडर. ठीक है, या कैस्केडिंग इफ एल्स स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं. ठीक है, ये समझ लीजिए इफ एल्स लैडर छोटा भाई है. ठीक है, ये दोनों भाई हैं, ये छोटा है, छोटे मियां, आप ऐसे लिख दीजिए, ये छोटे मियां और ये क्या है, बड़े मियां. छोटे मियां और बड़े मियां, सुभान अल्लाह. ठीक है, ये बड़े मियां है. बड़े मियां मींस बड़ी कंडीशन, लार्ज नंबर ऑफ कंडीशंस, ऐसे समझिए.
आप ये भी कह सकते हैं स्विच केस स्टेटमेंट इज द सब्स्टिट्यूशन ऑफ if else ladder. Yes, definitely if else ladder का substitution है. Substitution means in place of if else ladder का कोई एक प्रोग्राम आपने बनाया, आप उसको स्विच केस से भी बना सकते हैं. ऐसा नहीं है. स्विच केस स्टेटमेंट आप लेस नंबर ऑफ कंडीशंस के लिए भी मेक कर सकते हैं, मोर नंबर ऑफ कंडीशंस के लिए भी मेक कर सकते हैं. बट एक प्री डिफाइंड रूल है, अगर नंबर ऑफ कंडीशंस बहुत ही ज्यादा है तो प्लीज प्रेफर स्विच केस स्टेटमेंट, सो दैट उसकी कोड की रीयूजेबिलिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ जाएगी. ठीक है, और प्रोग्राम आपको आसानी से समझ में आएगा. अदरवाइज इफ एल्स लैडर में आप कंडीशन पे कंडीशन लिखते चले जा रहे हैं और प्रोग्राम कोड वेरी लेंथी हो जाएगा, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, नॉट ओनली फॉर यूजर बट ऑल्सो फॉर द कोडर, दोज हु आर मेकिंग देयर प्रोग्राम. ठीक है, तो ये इसका सब्स्टिट्यूट भी है. सब्स्टिट्यूट क्लियर, सब्स्टिट्यूट भी है. किसका? इफ एल्स लैडर का सब्स्टिट्यूट है स्विच केस स्टेटमेंट. क्लियर. चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ते हैं इसके सिंटैक्स के बारे में. ठीक है, अभी तो हमने ये पढ़ लिया इसका पर्पस क्या है. हाँ, एक चीज और है, किस टाइप की प्रॉब्लम आएंगी उनको हम स्विच केस स्टेटमेंट से सॉल्व करेंगे. प्रॉब्लम जैसे कि चॉइस बेस्ड प्रॉब्लम, चॉइस बेस्ड प्रॉब्लम. ठीक है बेटा, चॉइस बेस्ड प्रॉब्लम कह सकते हैं, और वी कैन से मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम. मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम्स जिसमें कि मेन्यूज होंगे, यूजर से आप चॉइस लेंगे, एक मेन्यू होगा. ठीक है, मेन्यू में जैसे कि ये लिखा हुआ है मेन्यू, सपोज दैट जैसे कि क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेशन का एक कैलकुलेटर बनाना था आपको, कैलकुलेटर. ठीक है, इसमें आपने लिखा वन, प्रेस वन, यहां लिख लीजिए प्रेस वन फॉर एडिशन. ठीक है, प्रेस वन फॉर एडिशन एंड सेकेंड फॉर सब्ट्रैक्शन. प्रेस टू फॉर सब्ट्रैक्शन. ठीक है, प्रेस 3 फॉर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, एंड प्रेस 4 फॉर डिवीजन. ठीक है, मैंने केवल 4 केसेस लिए हैं. इस तरीके का एक मेन्यू है, कैलकुलेटर है. इसमें आपसे पूछ रहा है इंटर योर चॉइस, आपको यूजर से चॉइस इंटर करानी है कि भैया आप कैलकुलेटर में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हैं. इस टाइप का अगर कोई प्रोग्राम आता है चॉइस बेस्ड, की चॉइस आपसे पूछे यूजर, ठीक है, चॉइस को दे रहा हूं, ठीक है, मुझे मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कराना है, सो आई विल प्रेस 3. ठीक है, तो क्या हो जाए, ऑटोमेटिकली मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाए प्रिंट. ठीक है, आफ्टर गिविंग द वैल्यूज, आपने वैल्यू इंटर करी और मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो गया. तो इस टाइप के जो मेन्यू ड्राइवन प्रोग्राम्स होते हैं, चॉइस बेस्ड प्रोग्राम होते हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वी हैव टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट. ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज इसको जरूर राइट कर लीजिएगा या फिर मार्क कर लीजिएगा. इस टाइप की प्रॉब्लम वेरी इंपॉर्टेंट. किस टाइप की? चॉइस बेस्ड और मेन्यू ड्राइवन. ठीक है, चॉइस यूजर से पूछेगा और आपको उसके अकॉर्डिंग चूज करना है चॉइस. ठीक है, चलिए इसका सिंटेक्स देखते हैं. सिंटेक्स ऑफ स्विच केस स्टेटमेंट. सिंटेक्स मतलब होता है वे ऑफ राइटिंग द कोड. वे ऑफ राइटिंग द कोड, मैं बता चुका हूं आप लोगों को, वे ऑफ राइटिंग द कोड इन स्विच केस. सबसे पहले क्या राइट करेंगे, स्विच का एस स्मॉल लेटर में होगा, कैपिटल लेटर में मत बनाइएगा, एस स्मॉल है. ठीक है, ब्रैकेट में एक्सप्रेशन. ठीक है, कोई एक्सप्रेशन हो सकता है यहां पे, एक्सप्रेशन. ठीक है, कर्ली ब्रेसेस, देन केस का सी स्मॉल है, कैपिटल नहीं है, डोंट वरी. ठीक है, केस, यहां पर लेबल 1, कॉलन सिंबल. ठीक है, स्टेटमेंट 1 सेमीकॉलन. आफ्टर statement there is a break statement. Next case label number 2, colon symbol,
स्टेटमेंट नंबर 2, स्टेटमेंट मींस यहाँ पे वॉट एवर द लॉजिक इज देयर यू हैव टू राइट इनसाइड द केसेस, ठीक है, स्टेटमेंट। सो स्टेटमेंट्स हम लिख सकते हैं, स्टेटमेंट्स 2, फिर ब्रेक, ठीक है, ब्रेक सेमीकोलन डैट डैट डैश, n नंबर ऑफ कंडीशंस है तो n नंबर ऑफ केसेस वी हैव टू राइट, ठीक है। एंड लास्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मींस बाय डिफॉल्ट इफ नो एनी केसेस इज रनिंग, ठीक है, सो डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल रन, डिफॉल्ट स्टेटमेंट विल रन, ठीक। और यहां पर क्लोज हो गया, ठीक। अब इसको समझते हैं एक बार फिर से अच्छे से, ठीक है। स्विच स्मॉल लेटर में एस, स्मॉल डब्ल्यू, ईच एंड एवरीथिंग इन स्मॉल। एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन में हम यहां पर जो भी राइट कर रहे हैं, यहां पर सबसे पहले वी हैव टू राइट द वेरिएबल्स। एक्सप्रेशन में हमेशा हम लोग देते हैं वेरिएबल्स, क्या देते हैं, वेरिएबल्स। और लेबल्स में हम लोग देते हैं कांस्टेंट। लेबल में हम लोग किस टाइप की वैल्यू पास करते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट में भी टू टाइप्स के कांस्टेंट वी हैव टू पास, इंटीजर कांस्टेंट वी कैन पास, इंटीजर कांस्टेंट, और करेक्टर कांस्टेंट। ये नोट कर लीजिएगा, इंटीजर कांस्टेंट वी कैन पास एंड करेक्टर कांस्टेंट वी कैन पास, ठीक है, इंटीजर एंड करेक्टर। लेबल में वेरिएबल्स नहीं हो सकते, वी कैन नॉट पास वेरिएबल्स इन लेबल, ऐसे लिखिए और क्रॉस कर दीजिए। इन एक्सप्रेशन पार्ट वी कैन डिफाइन, वी कैन गिव एनी वेरिएबल नेम दैट होल्डिंग द डेटा टाइप byte, byte, short, int और char, करेक्टर डेटा टाइप, ठीक है। बाइट टाइप का हम वेरिएबल पास कर सकते हैं, शॉर्ट टाइप का, INT टाइप का एंड करेक्टर टाइप का, ठीक है। फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप के वेरिएबल्स वी कैन नॉट डिफाइन, एक्सप्रेशन में नहीं राइट कर सकते, मेंशन कर लीजिएगा, फ्लोट एंड डबल, क्रॉस लगाइए, डबल लिखिए, क्रॉस लगाइए। सो वी कैन नॉट डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ फ्लोट एंड डबल डेटा टाइप, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप ये समझिए, इतना क्लियर हो गया। केस में क्या लिखेंगे, यहां पर आपने सपोज दैट इंटीजर कांस्टेंट लिखा, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर में आपने लिखा यहां पर केस 1, सपोज दैट यू हैव रिटन केस 1। 1 क्या है बेटा, ये इंटीजर कांस्टेंट है, 1 क्या है, इंटीजर वैल्यू है, इंटीजर कांस्टेंट, दिस वैल्यू इज फिक्स्ड, ठीक है। अगर यूजर से हम चॉइस लेंगे, यूजर ने 1 प्रेस किया तो वॉट एवर द स्टेटमेंट रिटन इनसाइड द केस 1 विल बी एक्सिक्यूटेड हियर, ठीक है, क्लियर। जैसे कि आप लोग इफ एल्स लैडर में कर रहे थे, इफ एल्स लैडर में क्या था, कंडीशन लिखते थे, कंडीशन के अंदर क्या होती थी, स्टेटमेंट्स होते थे, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती थी तो रिगार्डिंग दैट कंडीशन जो भी स्टेटमेंट होते थे वो रन करते थे, अदरवाइज जंप कर जाते थे नेक्स्ट कंडीशन पे, ठीक है। अगर ये केस नहीं है सेटिस्फाइड तो केस नंबर 2 पर आएंगे, केस नंबर सपोज दैट दिस इज द 2, so statement 2 related to case 2 will be executed, ठीक है। एंड इफ कोई भी केस अगर रन नहीं कर रहा, कोई भी कंडीशन यूजर ने चॉइस में नहीं दी है, सपोज दैट 4 चॉइसेस थी, 1 फॉर एडिशन, ठीक है, ये 4 चॉइसेस यूजर ने दे रखी थी, 1 2 3 4, ये प्लस के लिए, ये माइनस के लिए, ये मल्टीप्लीकेशन के लिए और ये डिवीजन के लिए, ठीक है। तो अगर यूजर ने 1 2 3 4 में से कोई भी चॉइस नहीं दी है तो क्या हो जाएगा, यहां पर डिफॉल्ट स्टेटमेंट रन करेगा, यहां पे लिखेंगे इनवैलिड चॉइस, दे दिया। जैसे कि आप लोग सिंपल सा इफ एल्स लैडर में कर रहे थे, एल्स पार्ट में राइट कर रहे थे, वहां का एल्स, यहां का डिफॉल्ट, इफ एल्स लैडर में, ठीक है। इफ एल्स लैडर में क्या था, इफ लिखते थे, एल्स इफ लिखते थे, फिर एल्स इफ, फिर एल्स इफ, एल्स इफ, वहां पर कंडीशन पास करते रहते थे, और सबसे लास्ट में अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इफ कोई भी कंडीशन इफ नॉट सेटिस्फाइड, देन एल्स पार्ट विल बी एक्सिक्यूटेड। व्हाट पार्ट, else part will be executed, clear everyone, ठीक, चलिए। so this is the condition number 1, if the condition number 1 is satisfied, so this statement will be satisfied. After that there is a break statement, this is what, break statement, ठीक है। break statement means जैसे ये condition satisfy हुई, it get a break statement, that is also known as jump statement,
ये क्या है बेटा, जंप स्टेटमेंट है। सीधे आप बाहर आ जाएंगे केस स्टेटमेंट से, सीधे। अगर आपका केस 1 सेटिस्फाई हुआ, तुरंत स्टेटमेंट जो भी रिटर्न है इनसाइड द केस वो एग्जीक्यूट होंगे। जस्ट यू विल गेट द ब्रेक स्टेटमेंट, आफ्टर दैट यू विल कम आउट ऑफ द स्विच पार्ट। स्विच स्टेटमेंट यहां से, ये पूरा स्विच स्टेटमेंट है ना, यहां से लेकर यहां तक, इससे पूरे बाहर आ जाएंगे। सपोज दैट यूजर ने केस नंबर 2 दिया था, ये मान लीजिए केस नंबर 2 है, तो ये केस सेटिस्फाई नहीं होगा, सीधे जंप करेंगे हम लोग, यहां पे स्विच करेंगे, ये स्टेटमेंट पास होगा, रन होगा, उसके बाद फिर से ब्रेक मिलेगा और सीधे हम जंप कर जाएंगे आउट ऑफ द स्विच। सपोज दैट अगर ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो क्या करेंगे? अगर मान लीजिए ये ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, इट इज नॉट मैंडेटरी इफ द, बिकॉज ब्रेक स्टेटमेंट इज नॉट मैंडेटरी इन स्विच केस। आप हटा भी सकते हैं। मान लीजिए केस 2 अगर आपका सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, तो और मान लीजिए केस 2 के नीचे केस 3 भी लिखा है, ठीक है, तो केस 2 भी एक्सक्यूट होगा और केस 3 भी एक्सक्यूट होगा, क्योंकि ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, यहां पे ब्रेक ही नहीं हो पाएगा, सीधे स्विच केस से बाहर ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस चीज को एक बार यहां पर हम फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, सो दैट थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो। वहां पर थोड़ा सा हौच पौच हो गई थी, यहां पर लिख दे रहा हूं। स्विच एस स्मॉल में है बेटा, ध्यान रखिएगा। स्विच, मान लीजिए मैंने एक्सप्रेशन लिया एक्स, ठीक है, या हम ले रहे हैं चॉइस, ठीक है, एक्स की जगह मैं ले रहा हूं चॉइस। चॉइस नाम का एक वेरिएबल है, इंटीजर टाइप वैल्यू ले रहे हैं। केस 1, ठीक है, 1 फॉर मैंने लिख दिया एडिशन, ठीक है, यहां पर एडिशन का फॉर्मूला लगाएंगे यहां पे, ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा ब्रेक, ठीक है, सेमीकोलन। केस 2 में सब्ट्रैक्शन वी हैव टू फाइंड, मैंने ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं किया। नाउ आई एम गिविंग केस नंबर 3, यहां पर हम लोग फाइंड आउट करेंगे मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन सिंबल इज देयर। आफ्टर दैट अगेन मैंने ब्रेक स्टेटमेंट नहीं दिया, ठीक है। फिर मैंने राइट किया केस नंबर 4, केस नंबर 4 कॉलन सिंबल, यहां पर लिखा डिवीजन, ठीक है, और यहां पर लगा दिया ब्रेक स्टेटमेंट, ठीक है, और इसके बाद लगा दिया डिफॉल्ट, यहां पर लिख दिया इनवैलिड चॉइस, ठीक है, इनवैलिड चॉइस लिख के इसको क्लोज कर दिया। अब क्या होगा इस केस में, मैंने अगर सेलेक्ट किया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, चॉइस नंबर 2 सेलेक्ट की, तो सीधे सीधे स्विच कर जाएगा। चॉइस नंबर 2 अगर मैंने दी यहां पे चॉइस नंबर 2, तो सीधे ये किस केस पे जंप कर जाएगा, केस नंबर 2 पे। इनसाइड दिस केस whatever the statement are written, it will be executed. After that there is no break statement, so case number 3 also will be executed, केस नंबर 3 भी एक्सिक्यूट होगा। उसके बाद यहां पर भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है, तो केस नंबर 4 पे जंप कर जाएगा, तो केस नंबर 4 एक्सिक्यूट करेगा। whatever the statement written inside the case number 4, it will be executed. After that there is a break statement, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, एक्सिक्यूशन ब्रेक हो जाएगा और आप आ जाएंगे स्विच केस से बाहर, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में इसके रिगार्डिंग जो भी एग्जांपल्स होंगे वी विल डिस्कस इट, ठीक है। एक प्रोग्राम देखेंगे स्विच केस में। आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम्स। तब तक के लिए अगर आपको कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है स्विच केस में, सिंटैक्स में या फिर लेटर में, तो प्लीज कमेंट करिए, कमेंट करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके क्लास, तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड डे टू ऑल, जय माता दी।